بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ کپڑے دھوتے دھوتے شبانہ اختر کو یوں محسوس ہوا جیسے کوئی اس کے دل کو اپنی جانب اس طرح کھینچ رہا ہے جیسے درخت کے ساتھ اگی ہوئی مضبوط شاخ کو توڑ کر الگ کرنا چاہتا ہو۔ سیدھے ہاتھ میں صابن پکڑے فرش پر رکھے کپڑے کو وہ مل مل کر دھو رہی تھی۔ اس کا ہلتا ہوا بدن رک گیا۔ الٹے ہاتھ کو سینے پہ رکھ کے اس نے دل کی کیفیت محسوس کرنا چاہی۔ اندر کچھ کلا بازیاں سی محسوس ہو رہی تھیں۔ کل رات سوتے میں بھی اسے یوں لگا تھا جیسے کسی نے اس کے دل کو پکڑ کر زور سے کھینچا ہو۔ وہ گھبرا کر جاگی اور بیٹھ گئی۔ اندھیرے میں بستر پر بیٹھی وہ آنکھیں جھپک جھپک کر اس کیفیت کو سمجھنے کی کوشش کرتی رہی کہ شاید کچھ اور بھی ہو، مگر کچھ بھی نہ ہوا۔ آنکھوں میں نیند کا خمار جوں کا توں تھا۔ وہ پھر سو گئی۔ معمول کے مطابق صبح اٹھی۔ وہ گھر کا سارا کام خود کرتی تھی۔ کچن اس نے کبھی کسی کے حوالے نہیں کیا تھا۔ شوہر کو ناشتہ دیا۔ اسے آج گوجرانوالہ اپنی دکانوں کا کرایہ وصول کرنے جانا تھا۔ وہ چلا گیا۔ چھوٹی بیٹی ناشتہ کر کے اپنے کلینک میں چلی گئی تھی۔ گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے کا دروازہ گلی میں کھول کے والدین نے اسے ایک ہومیوپیتھک کلینک کھول دیا تھا۔ پہلے اسے باقاعدہ 3 سالہ کورس بھی کروایا تھا۔ اس سے بڑی 3 لڑکیاں بیاہ دی گئی تھی اور اکلوتا بیٹا لاٹری کے ذریعے کینیڈا چلا گیا تھا۔ چھوٹی بیٹی طلعت کا قد اتنا چھوٹا تھا کہ لہیم و شہیم شوہر نے پہلے ہفتے ہی اسے ہمیشہ کے لیے گھر بھیج دیا تھا۔ یہ دکھ شبانہ کے کلیجے کو لگ گیا تھا۔ اگرچہ باپ نے ہمت بندھا کے ایک اچھے کام پر لگا دیا تھا جہاں وہ غریبوں کا علاج مفت کرتی تھی۔ جب دل کی کھچاوٹ اور گھبراہٹ بڑھتی ہی گئی تو شبانہ کپڑے چھوڑ کر ننگے پیر ننگے سر باہر آ گئی۔ طلعت کو آوازیں دی۔ اس وقت کلینک میں کوئی مریض نہیں تھا۔ وہ دوڑی آئی۔ زرد ہوتی ماں کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ کیا بات ہے امی؟ میرا دل ڈوبتا جا رہا ہے، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کوئی دوائی لاؤں؟ اس نے ماں کی نبض پکڑی۔ نہیں، جلدی سے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو۔ تمہارے ابو تو ابھی کہیں راستے میں ہوں گے۔ امی آپ کپڑے بدل لیں، آپ کے سارے کپڑے گیلے ہو رہے ہیں۔ میں باہر نکل کر رکشہ پکڑتی ہوں۔ اتفاق سے خالی رکشہ سامنے نظر آیا۔ اس نے رکنے کا اشارہ کیا، ماں کو بٹھایا اور محلے کے ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ ڈاکٹر نے دیکھتے ہی کہا ان کو شدید قسم کا ہارٹ اٹیک ہوا ہے، فوراً کسی اسپتال لے جائیں۔ مگر ڈاکٹر صاحب ان کی تو حالت غیر ہو رہی ہے، وقتی طور پر تو کوئی دوائی دیں تاکہ یہ ہسپتال تک جانے کے قابل ہو سکیں۔ طلعت نے کہا نہیں نہیں۔ ڈاکٹر نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا وقت ضائع نہ کریں، فوراً جائیں، جلدی لے جائیں، جلدی جلدی۔ ڈاکٹر یوں گھبرا کر پیچھے ہٹا کہ طلعت کو سخت غصہ آیا، حالانکہ وہ فیس اور دوائیوں کے پیسے ساتھ لے کر چلی تھی، مگر ڈاکٹر نے تو ہاتھ لگانا بھی گوارا نہ کیا۔ رکشہ ابھی باہر کھڑا تھا۔ گرتی پڑتی ماں کو اس نے رکشے میں بٹھایا اور رکشے والے سے کہا پبلک ہسپتال میں لے چلو۔ ماں کو اپنے کندھے سے لگا کر اس نے اس کی کمر میں بازو ڈال دیا تھا کہ رکشے کے جھٹکے سے اسے تکلیف نہ ملے۔ پھر بھی تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس کی نبض چیک کرتی جس کا سرا نہیں مل رہا تھا۔ اپنے پہلو کے ساتھ لگا کر اس کی دھڑکنیں شمار کرنے کی کوشش کرتی۔ رکشے کے بے ہنگم شور میں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اگر ڈاکٹر وقتی طور پر کوئی دوائی دے دیتا تو کیا حرج تھا؟ ماں بے سدھ ہوئی جاتی تھی۔ راستہ بھی کافی لمبا تھا۔ پبلک ہسپتال آ گیا۔ اندر داخل ہوتے ہی اس نے رکشہ والے سے کہا وہاں سامنے جہاں ایمرجنسی لکھا ہے لے چلو۔ باہر اسپتال کے کچھ ملازم کھڑے تھے۔ اس نے رکشے سے اتر کر ان سے کہا کہ اسٹریچر لے آئیں۔ وہ دوڑ کر اسٹریچر لے آئے جو باہر ہی پڑا ہوا تھا۔ اس نے رکشے والے کو پیسے دیے اور کراہتی ہوئی ماں کو ان لوگوں کی مدد سے اسٹریچر پر لٹا دیا اور انہیں سارا ماجرا سنایا اور پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے۔ اتنے میں یونیفارم میں ملبوس ایک آیا قسم کی عورت بھی آ گئی۔ اس نے دیکھا عورت مریضہ ہے تو باقاعدہ اسٹریچر کو چلا کر ان کے ساتھ اندر آ گئی۔ پھر اس نے طلعت کو بتایا کہ سیڑھیاں چڑھ کر ڈاکٹر قدیر کا دفتر ہے جو ایمرجنسی وارڈ میں 24 گھنٹے رہتے ہیں، ان کے پاس جائیں، ان سے چٹ لائیں یا ان کو ساتھ لے کر آئیں، پھر وہ جہاں کہیں گے وہ مریضہ کو لے جائیں گے۔ طلعت گھبرا گئی۔ میں اوپر جاؤں گی، میری ماں یہاں اکیلی پڑی رہے گی۔ ہائے بی بی، آیا نے آگے آ کر کہا ہم کس مرض کی دوا ہیں، ہمارا یہی کام ہے مریضوں کے پاس کھڑے ہونا، ان کی حفاظت کرنا، آپ دوڑ کر جائیں، دیر نہ کریں۔ طلعت اپنی ماں کو ان کے پاس چھوڑ کر اوپر چڑھ گئی۔ ڈاکٹر صاحب دفتر میں موجود نہ تھے، وارڈ کا راؤنڈ لینے گئے تھے۔ ان کو ڈھونڈ کر بتانے اور لانے میں تقریباً 1 گھنٹہ لگ گیا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نیچے آئے، جلدی جلدی مریض کو دیکھا، مگر مریضہ تو رکشے سے اترنے کے بعد ہی اپنی منزل پر روانہ ہو گئی تھی۔ پھر بھی ڈاکٹر صاحب نے اسے اچھی طرح دیکھا۔ نرس سارے آلے وہیں اٹھا لائی تھی۔
सारी कोशिशों के बाद डॉक्टर ने हमदर्दी से तल्लत की तरफ देखा और कहा, आई एम सॉरी। तो तल्लत की चीखें निकल गईं। माँ माँ, ये तूने क्या किया? डॉक्टर का इंतजार भी ना किया। तल्लत का रद्द अमल कुदरती था। डॉक्टर ने नर्स से कहा, जब जरा सुकून में आए तो इन्हें दफ्तर में ले आए, जरूरी कार्रवाई करके इन्हें कागजात दे दिए जाएंगे। थोड़ी देर चीख चिल्लाकर तल्लत ने पर्स में से अपना मोबाइल निकाला ताकि बाप को इत्तला दे, मगर उनका नंबर अभी तक बंद मिल रहा था। नर्स उसे साथ ले गई, कागजात बनाकर दिए और एम्बुलेंस पर मैयत ले जाने की इजाज़त भी लिख कर दे दी। रोती हुई तल्लत माँ की लाश के पास आ गई। उस वक्त अस्पताल का एक मुलाजिम खुद स्ट्रेचर के पास आ गया। तल्लत ने पूछा, एम्बुलेंस कहाँ से मिलेगी? उस आदमी ने, जिसका नाम सिराजुद्दीन था, बाहर निकलकर दफ्तर का रास्ता बताया कि परमिट वहाँ दिखा दें, एम्बुलेंस आपके साथ ही आ जाएगी। मगर मेरी अम्मी यहाँ अकेली पड़ी रहेंगी, उसने रोते हुए कहा। हाय बीबी जी, हम किस मर्ज की दवा हैं? आया ने फिर उसी अंदाज में कहा, हम यहाँ आपकी खिदमत के लिए ही खड़े हैं जी, आप जाएं, जल्दी जल्दी जाने का बंदोबस्त करें। जब वो एम्बुलेंस के दफ्तर की तरफ जा रही थी, उसके वालिद का फोन आ गया। वो अभी गुजरांवाला पहुंचे ही थे। उसने रो रो कर सारी बप्ता अपने बाप को सुनाई। उसने कहा वो अभी उसी बस से वापस आ रहा है, उसके आने तक हौसले से सारे काम करे। तल्लत के जाते ही आपा हनीफा बेगम ने लाश के ऊपर पड़ी हुई चादर इस तरह हटाई कि उसके चेहरे और कलाइयों का जायजा ले लिया। फिर कोई बात सरगोशी के अंदाज में सिराजुद्दीन के कान में कही। सिराजुद्दीन बाहर निकलकर एम्बुलेंस के दफ्तर की जाने मुंह करके खड़ा हो गया। हनीफा बेगम ने बड़ी महारत से लाश की कलाइयों में पहनी हुई सोने की 12 चूड़ियां और दोनों अंगूठियां उतार ली। कानों के टॉप्स रहने दिए कि उन पर किसी वक्त भी नजर जा सकती थी। अभी सिराजुद्दीन की तरफ से एम्बुलेंस रवाना होने का सिग्नल नहीं मिला था, इसलिए वो जल्दी से नज़दीकी गुसलखाने में घुस गई। 12 चूड़ियां और दोनों अंगूठियां उसने अजार बंद के साथ बांध ली और शलवार के अंदर बनाई गई एक जेब में डाल के इत्मीनान से बाहर आ गई। तल्लत के वालिद ने कई अजीज़ों को इत्तला दे दी थी, इसलिए एम्बुलेंस में बैठी तल्लत टेलीफोन वसूल करती और रोती रही। सिराजुद्दीन और हनीफा ने बड़ी हमदर्दी और खलूस के साथ एम्बुलेंस में मैयत लटाने की कार्रवाई की, बल्कि हनीफा तो तल्लत के गले लगकर रोई और उसे तसल्लियाँ भी दी। मौत की खबर फैलते ही घर मेहमानों से भर गया था। मोहल्ले में जिसने भी सुना चला आया। जब बेटियां आ गईं तो नहलाने और कफनाने का मरहला शुरू हुआ। माँ के बदन पर पानी डालती बड़ी बेटी रफाकत चौंक गई। तल्लत को बुलाया और कहने लगी, अम्मी तो हमेशा 12 चूड़ियां और हाथों में 2 अंगूठियां पहने रखती थीं, कहाँ है वो? हाँ, तल्लत ने आवाज़ बाख्ता होते हुए उनके कानों की तरफ देखा। ये 2 टॉप्स हैं, रफाकत ने उसे दिखाए। अभी नहाने वाली ने उनके कानों से उतार कर दिए तो मुझे चूड़ियों और अंगूठियों का ख्याल आया। हाँ अपा, जब मैं इन्हें रिक्शे में डालकर ले गई थी, कई बार उनकी नब्ज़ देखी थी और हर बार चूड़ियाँ हटाकर ही देखी थी। उस वक्त अंगूठियाँ उनके हाथों में थीं और जब एम्बुलेंस में ला रही थी उस वक्त देखी थी। सच्ची बात है आपा, मुझे कहाँ होश था। तल्लत फिर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मैं अकेली थी, कोई बड़ा भी पास नहीं था। भागती इधर जाती, भागती उधर जाती। उस पर फ़ोन भी आने लगे थे। और कौन था मैयत के पास? हाँ, उसने दुपट्टे से आंखें साफ की। अस्पताल की एक आया थी जो वहाँ सफाई का काम करती है और एक मददगार था। तल्लत ने सारी तफसील बहन को बताई। मज़ीद बातें करने का वक्त नहीं था। इस मरहले में हर काम का वक्त मुतय्यन होता है, मगर ये ज़रा सी तशवीश भरी खुसर पुसर सारे घर में फैल गई। हाय हाय, अस्पताल में किसी ने मैयत की चूड़ियाँ उतार लीं। तौबा तौबा, अस्तगफिरुल्लाह। सोम के बाद दोनों बहनें रफाकत और तल्लत अस्पताल चली गईं। इसी तरह रिक्शे में बैठकर सामने 2-3 मुलाजिम खड़े थे। तल्लत बहन को लेकर उस तरफ बढ़ी। सबको गौर से देखा। उनमें सिराजुद्दीन को पहचान गई। आपको मालूम है, परसों मैं अपनी अम्मी जान को लेकर आई थी और वो यहाँ आते ही फौत हो गई थी। बीबी जी, यहाँ रोज़ाना सैकड़ों मरीज आते हैं, कुछ फौत भी हो जाते हैं। अब हम किस किस को याद रखें? भाई, तुम्हारे साथ एक औरत भी खड़ी थी यहाँ, तुम दोनों ने मेरी बड़ी मदद की थी। बीबी, हमारा काम खिदमत करना है, जो भी आता है हम उसकी बढ़कर खिदमत करते हैं। बात क्या है बीबी? एक नए खिदमतगार ने बढ़कर पूछा। हमारी अम्मी की कलाइयों से किसी ने सोने की 12 चूड़ियाँ और 2 अंगूठियाँ उतार ली हैं। तौबा तौबा, अल्लाह माफ़ करे। बीबी जी, आप क्या कह रही हैं? अगर अस्पतालों में ऐसी हरकतें होने लगे तो खुदा का कहर ना नाजिल हो जाए। मगर वो औरत कहाँ है? कौन सी औरत बीबी जी? ये इर्द गिर्द सारी खिदमतकार औरतें फिर रही हैं, आगे बढ़कर खुद ही पहचान लें। पूछना, फिर किस्सा दोहराना, फिर एक जैसे रद्द अमल का इजहार होना।
हाय वाय के सिवा कुछ भी ना मिला। दोनों बहनें मलाल लिए घर आ गईं। हनीफा बेगम ने घर जाते ही एक हफ्ते की अर्जी भेज दी थी कि मेरी बेटी शदीद बीमार है और मैं कामों की जा रही हूँ। ये अर्जी ले जाने वाला सिराजदीन था। हनीफा कामों की चली गई। उसका दामाद मकसूद अली किसी सरकारी दफ्तर में चपरासी था। उसकी शादी को 3 साल हो गए थे। उसने जहेज में मोटरसाइकिल मांगी थी। शादी के वक्त हनीफा मोटरसाइकिल नहीं दे सकी थी, मगर उसने वादा कर लिया था कि 1 साल के बाद ले देगी। अब उनका एक बच्चा भी हो गया था, इसलिए उसके दामाद ने साफ कह दिया था कि अगर मोटरसाइकिल नहीं लेकर देनी तो अपनी बेटी को बच्चे समेत ले जाओ। कामों की जाकर हनीफा ने अपने दामाद को बुलाया और चूड़ियाँ उसके सामने रखकर बोली, बेटा, यही मेरा जीना मरना है। सारी जिंदगी की कमाई है जो मैंने बचा कर रखी थी, मगर ये अपनी बेटी और दामाद की खुशियों से ज़्यादा कीमती नहीं है। बेटा, तुम इस चूड़ियों को बेचकर मोटरसाइकिल ले लेना, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अम्मा, तू कितनी चालाक है। तूने शादी पर ये चूड़ियाँ मुझे क्यों ना दी? इसी दिन के लिए रख छोड़ी थी। अब भी तुझे नहीं, अपने दामाद को दे रही हूँ। उसने बेटी के हाथ से चूड़ियाँ छीन ली जो बार बार पहन कर देख रही थी और दामाद की गोद में रख दी। हनीफा के जाने के बाद बेटी और दामाद सोच में पड़ गए। दामाद तो सोने की ताज़ा कीमत भी पूछ आया था। चुनाचे तय हुआ कि सिर्फ 4 चूड़ियाँ बेचकर मोटरसाइकिल खरीद ली जाए और बाकी चूड़ियाँ किसी कड़े वक्त के लिए संभाल कर रख ली जाए। जिस दिन मकसूद अली नई मोटरसाइकिल खरीद कर लाया तो बीवी ने मिन्नतें करके बाकी की 8 चूड़ियाँ कलाई में कुछ रोज़ पहनने की इजाज़त मांग ली। कुछ दिन बाद हनीफा वापस अस्पताल अपनी ड्यूटी पर आ गई। फुर्सत मिलते ही सिराजदीन और हनीफा एक दरख्त के साए में आकर बैठ गए। कोई आया था? हनीफा ने सरगोशी से पूछा। हाँ, तीसरे ही दिन 2 बेटियां आ गई थीं। तेरा पूछ रही थीं। फिर उन्होंने बड़ा शोर मचाया। एक एक से पूछा। डॉक्टर साहब के कमरे में भी गई। फिर क्या होना था? मैं तो साफ मुकर गया कि मैंने कभी इन्हें नहीं देखा। मेरा पूछा था उन्होंने? हाँ, जिसके साथ तू गले लग लग कर रो रही थी, उसने बार बार पूछा था। तूने क्या कहा? मैंने कहा, आपके इर्द गिर्द इतनी माइयाँ घूम फिर रही हैं, पहचान करके पूछ लो। मुझे क्या पता उस दिन कौन आया, कौन गया और कौन मेरे साथ था। सिराज और हनीफा कह कहा लगाकर हंसने लगे। अच्छा, मस्ती मत कर, निकाल मेरा हिस्सा। सिराज, सच बात बताऊं, तुझे तो पता है मैंने आसारपन के साथ बांधकर चूड़ियाँ लटकाई थी, मगर गिरा जरा ढीली लगी। जब मैं जा रही थी तो मुझे पता ही नहीं चला। एक एक करके चूड़ियाँ बस के अंदर ही गिर गईं। वो तो जब एक मुसाफिर ने एक चूड़ी उठाकर शोर मचाया तब मुझे पता चला। तू बकवास करती है, सिराजदीन चिल्लाया। तेरी नीयत बदल गई है, तू कमीनी हो गई है, कमजात बेगैरत। मैं तुझे अभी पकड़वाता हूँ। हनीफा ने जेब से 2 अंगूठियाँ निकालकर हथेली पर रखी और बोली, तू ये ले ले, कसम से यही बची हैं। मैं तेरा गला दबा दूंगा। शोर मचाएगा तो अपना ही कुछ बिगाड़ेगा। तू भी इस वारदात में शामिल था। तेरे पास कोई सबूत नहीं है, मैं तुझे जलील करवाऊंगा। सिराज, अपने आप को काबू में रख। मैं भी एमएस को बता दूंगी। पिछले हफ्ते जो नौजवान हादसे में गुजर गया था, तूने इमरजेंसी वार्ड में उसकी 2.5 लाख की घड़ी उसी वक्त उतार ली थी। वो लोग घड़ी ढूंढते रहे थे। याद है उनका रोना धोना? कमीनी औरत, मैंने इसमें से तुझे हिस्सा दिया था। कितना दिया था? सिर्फ 5,000 रुपए। और ये चूड़ियाँ तो कई लाख की होंगी जिनके नसीबों की होंगी। मेरे लिए तो एक चूड़ी भी हराम है। अल्लाह करे तेरे कफन पर लगे। हनीफा सिराज के मुंह से झाग निकल रही थी। ओए बेगैरत, मुर्दों के जेवर और घड़ियां चुराने वालों की बद्दुआएं नहीं लगती। हनीफा जोर जोर से हंसने लगी। देख सिराज, हम दोनों की मौज लगी हुई है। कभी तू पल्ला मार लेता है और कभी मेरा दाव लग जाता है। गुस्सा ना खा। मैंने पता करवाया है, ये अंगूठियां 2 लाख की हैं। 1 लाख भी तुझे मिल जाए तू ऐश करेगा, वरना सिराज गुस्से से पुनकारा, वरना गंदगी में पत्थर फेंकेगा तो छींटे तेरे ऊपर भी पड़ेंगे। दोनों का अंजाम एक जैसा होगा। हनीफा सीढ़ियों पर पोछा लगाती नीचे आ रही थी कि उसकी जेब में पड़ा फोन फड़फड़ाया। उसने हाथ रोककर फोन निकाला, सुना और चीखती हुई बाहर को भागी। टैक्सी पकड़ी और कामों की रवाना हो गई, रोती और दुआएं मांगती जाती। फोन पर उसके दामाद के एक्सीडेंट की खबर आई थी। तफसील कोई बता नहीं रहा था। उनके घर पहुंची तो सारा मोहल्ला जमा था। उसे फौरन जाए हादसा पर ले जाया गया जो पुलिस के घेरे में था और कार्रवाई नोट हो रही थी। 1 हफ्ता कबल मकसूद ने मोटरसाइकिल खरीदी थी। 8 दिन बाकायदा चलाता रहा था। आज पहली बार बीवी ने कहा था, हमें भी सैर करवाओ।
وہ خود تیار ہوئی، اس نے سونے کی چوڑیاں پہنی اور 1 سال کے بچے کو بھی تیار کیا۔ بیوی اور بچہ پیچھے بیٹھ گئے۔ آبادی سے ذرا باہر نکلے تو موٹر سائیکل ایک ٹرک سے ٹکرا گئی۔ بیوی اور بچہ موقع پر فوت ہو گئے۔ داماد کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں، مگر پولیس ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں لگا سکی تھی کہ پیچھے بیٹھی ہوئی عورت کی پوری کلائی کون کاٹ کر لے گیا تھا اور کیوں۔ ادھر پبلک ہسپتال کے پچھواڑے کوڑا کرکٹ چننے والوں کی جھگیوں کے آس پاس پھٹے پرانے کپڑوں میں ایک عورت نظر آتی ہے جس کے ہاتھ میں ایک گڑیا ہوتی ہے۔ ہمیشہ گڑیا کا ایک بازو ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ وہ عورت دیوانہ وار راہگیروں، موٹر والوں اور سائیکل والوں کے پاس جاتی اور کہتی ہے، میری بیٹی کا بازو واپس دلا دو، اللہ کے واسطے میری بیٹی کا بازو دے دو، چوڑیاں رکھ لو، کلائی دے دو، میری اکلوتی بیٹی رو رہی ہے، دیکھو۔ وہ گڑیا کو آگے کرتی ہے، روٹی نہیں کھا سکتی، بچے کو دودھ نہیں پلا سکتی، خدا کے لیے میری بیٹی کی مدد کرو۔ وہ ساری رات روتی رہتی ہے، مجھے سونے نہیں دیتی، بیچاری پاگل ہے۔ یہ کہتے ہوئے لوگ گزرتے ہیں اور وہ ہواؤں کے پیچھے بھاگتی رہتی ہے۔